বিৰুদ্ধে এবাৰ গৰজি উঠিছে এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ কৈছে বিজেপিয়ে পৰাজয়ৰ উমান পালে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া বিজেপিয়ে ভোট চুৰি আৰম্ভ কৰিলে। 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400 পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰত পৰাজয়ৰ উমান পাই বিজেপিয়ে ভোট চুৰি আৰম্ভ কৰিলে। লগে লগে ভুৱা ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত লাগি গ'ল আৰু তাৰ পাছতে নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজতেই 10,000 টকাকৈ বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এনেদৰে বিজেপিয়ে এতিয়া জয়লাভ কৰি আহিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে দিল্লীত এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ ভোট চুৰি যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈ গৰ্জন। 24 লোকসভা নিৰ্বাচনত 400 পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ পৰাজয়ৰ উমান পায় হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিয়ে, বিহাৰত পৰাজয়ৰ উমান পালে আৰু তাৰ পাছতেই বিজেপিয়ে ভোট চুৰি আৰম্ভ কৰিলে। ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ ভোট চুৰি কাৰ্যসূচী আৰু তাতে এনেদৰে গৰ্জন এতিয়া গৌৰৱ গগৈ। লগে লগে ভুৱা ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত লাগি গ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। নিৰ্বাচনৰ মাজতে 10,000 টকাকৈ বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিজেপিয়ে। অৰ্থাৎ বিহাৰত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত 10,000 টকাকৈ বিলালে বুলি উল্লেখ কৰিছে, অভিযোগ আনিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ ECI ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ মুৰব্বী পাতিলে। আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে এতিয়া গৰ্জন এপিচিচিৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ এক ভোট চুৰি ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰামলীলা ময়দানত ভোট চুৰি ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈ গৰ্জন। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। 24 যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছিল আৰু সেই 24 লোকসভা নিৰ্বাচনত 400 পাৰ কৰিব বুলি কৈছিল, কিন্তু 400খন আসন চুব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে। আৰু তাৰ পাছত হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই নিৰ্বাচনত পৰাজয় হ'ব বুলি উমান পালে আৰু তাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিলে ভোট চুৰি, ভুৱা ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু তাৰ পাছতেই মহিলাৰ একাউণ্টলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত 10,000কৈ টকা পঠাই দিয়া বা বিলাই দিয়া। এনেসমূহ কাম কৰি এনেসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ। আৰু এনে কাম কৰিয়ে এতিয়া বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা বা বিহাৰত জয়লাভ কৰিলে বুলি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৰ্জন এতিয়া এপিচিচিৰ তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কি কৈছে মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে, বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, আমি সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। के अंदर ये भी देखा गांधी जी के उस चैलेंज को जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की इतिहास हमने जब भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। हमने सदन के अंदर यह भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी को कहा कि अमित शाह जी, मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए एक बहस, हो जाए एक चर्चा। तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। अमित शाह जी भी राहुल गांधी जी के उस चैलेंज को उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज हमें बात समझनी है, जो बात सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने सबको कही कि ये जो वोट ये हमारा अस्त्र है, ये वोट हमारी आवाज है। अगर जब वो अपना मजदूरी को लेकर, अपने किसान को लेकर, हमारे जो खाद्य जो आज बहुत पैसों में खरीदना पड़ रहा है, जब उसके साथ ये बेवफाई होती है तो वो अपनी आवाज कैसे उठाता है? वोट के द्वारा। जब बेरोजगार युवा, जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करता है? वो वोट के द्वारा।
वे महिला जिस पर अत्याचार होता है, वो महिला अपना गुस्सा कैसे दिखाती है, वो वोट के द्वारा। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांवों की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए ये भाजपा ये समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि 400 पार उनका सपना विफल हो गया, लोग उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे, और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट निकालने की शुरुआत की। इलेक्शन के बीच 10,000 रुपए फैलाने की बात की, और केंद्र निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के एकदम खास ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुर्सी पर बैठाया, और ताकि कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो। जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की इतिहास हमने जब भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। हमने सदन के अंदर यह भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी को कहा कि अमित शाह जी, मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए एक बहस, हो जाए एक चर्चा। तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा, तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। अमित शाह जी भी राहुल गांधी जी के उस चैलेंज को, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज हमें बात समझनी है, जो बात सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने सबको कही कि ये जो वोट, ये हमारा अस्त्र है, ये वोट हमारी आवाज है। अगर जब किसान, जब वो अपना मजदूरी को लेकर, अपने किसान को लेकर, हमारे जो खाद्य जो आज बहुत पैसों में खरीदना पड़ रहा है, जब उसके साथ ये बेवफाई होती है, तो वो अपनी आवाज कैसे उठाता है? वोट के द्वारा। जब बेरोजगार युवा, जब उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करता है? वो वोट के द्वारा। वे महिला जिस पर अत्याचार होता है, वो महिला अपना गुस्सा कैसे दिखाती है? वो वोट के द्वारा। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांवों की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए ये भाजपा ये समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि 400 पार उनका सपना विफल हो गया, लोग उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे, और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट निकालने की शुरुआत की। इलेक्शन के बीच 10,000 रुपए फैलाने की बात की, और केंद्र निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के एकदम खास ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुर्सी